या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चतुशङ्कर प्रभृतिदेवैः सदा वन्दिता श्यामा पार्थसरस्वती भगवती निशेष जड्या। और याद कर लें, साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स है। आप जब देखेंगे मतलब न्यूटन्स लॉज को, जब आप किसी मतलब उसको असली ज़िंदगी में देखेंगे काम करते हुए, तो उसको अच्छे से समझेंगे। बच्चों के लिए बहुत प्रभावशाली होता है, आगे तक के लिए याद रहता है। बहुत अच्छा स्टेप है। बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों के लिए ये संदेश है कि साइंस को हमेशा फ़न की तरह लें, और उसको सीखते हैं तो उसको एक इस तरीके से लें कि आप कुछ नया सीख रहे हैं। जो आपके आसपास की दुनिया है, आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा साइंस। आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लगता था कि कोई मतलब अलग तरीके से हो रही हो, आपको समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है। उससे आप और नई चीज़ें समझेंगे और आगे बहुत तरक्की करेंगे। Good afternoon, everybody. As you all know that we all have gathered over here for a workshop, and this is basically a science workshop which is organized on the topic low cost science teaching aids. It's a 5-day workshop and today it's the first day. So we have already shared many information, and this low cost science teaching aids workshop is organized by Pragati Vigyan Sanstha. The beginning of this program was done by a esteemed chief guest by a lamp lighting ceremony, Mr. Shashank Chaudhary, who is our CDO Meerut. And it was commenced with Mr. S.N. Tyagi sir, who is a retired IFS officer from Gujarat. He also shared his experience and knowledge and told us about many good things about the work he did. Next, then the teachers of different schools, they shared their experience with us. They talked about their school, the tools, the way they are using, the way they are teaching their students, and they all had a wonderful day over here with us. Next, we basically talked about that how we can implement practical approach in our students, how we can relate science with the nature. It's not that cramming of the books is really important, it's that how we can relate our topic with the practical knowledge. Simply sitting in the classroom is not the way of teaching science. We have to go outside, merge ourselves with the nature, and then increase our knowledge and increase our practical approach. Mr. Deepak Sharma sir, who is from NAS Inter College, he is a motivator. He motivated us with good information, and he will be helping us out in the coming 4 days more. We also performed a simple and a very easy experiment which we did with a tube and using our hands, which gave us a good beginning to the practical knowledge, right? It was a wonderful day, a wonderful experience, and I hope the coming days we will really enjoy over here, learn many things from sir. I would like to thank the teachers present over here who really helped us out and helped in making our day wonderful. Thank you everybody. I hope coming days will be really wonderful for us, and we will be learning many good things, and we will of course increase our practical knowledge, learn something new and give something new to our students. Thank you everybody. देखिए, एक बात को समझ लीजिए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग जो यहाँ पर टीचर वर्कशॉप के लिए आए हैं, तो सुनने के लिए तो बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे या सोच रहे हैं हमारे साथी कि हम लोग
केवल आदमी बैठे हुए ये सुनेंगे, आदमी खड़े हैं वो बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मामला दोनों तरफों से बराबर बराबर चलेगा। अगर 5 मिनट मैं बोलूंगा तो 5 मिनट आप बोलेंगे, बराबर चलेगा। यहाँ पे पढ़ना कोई भारी भी रहना, कोई हल्का नहीं रहना। हम सब लोग टीचर हैं और टीचर्स के साथ ही मेरा एक दूसरा दृष्टिकोण है। मैं अपनी क्लास में एक बच्चों से भी करता हूँ, अपने बेटे से भी कहता हूँ। अब बिल्कुल घर परिवार की से बात चलेगी, क्योंकि आपके परिवार में भी बच्चे, मेरे परिवार में भी बच्चे, और हमें स्कूल में भी बच्चे हैं, तो सब हमारे परिवार के बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या हम प्रॉब्लम्स में देखते हैं और क्या स्कूल में देखते हैं। क्या हमारा नजरिया दूसरा तो नहीं हो जाता है, अपने बच्चे के लिए दूसरा नजरिया हो जाता है, स्कूल के बच्चे के लिए दूसरा अलग अलग नजरिए हो जाते हैं, उसको भी देखना। और ये सारी चीजों की परिस्थितियों का मूल्यांकन भी करेंगे। और उसके दौरान में हम क्लास में कितनी मस्ती करते हैं, बच्चों में काम करना चाह रहा था। ये था कि कई बार होता है कि हम डांट डपट के कुछ काम करना होता है, जैसे मेरे जैसे टीचर आप ही अगर बच्चों ने कोई आदेश कर दिया कम नहीं करना उसका, देखिए आदेश हो गया तो काम को करना पड़ेगा, चाहे हंसी कर लो चाहे रोके करो। तो जब आपको काम करना ही है तो हंसी क्यों ना करो, रोके करो तो टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा पेट है ना। तो आप बीमार हो, आप खुद की इसलिए मस्त रहो और जो जिंदगी मैं अपने अनुभव का आधार